Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we are going to start the chapter number 2 of Geography 6, that is globe, map and their uses. So our today's student learning outcomes that we are going to say that SLOs we have to study today. Number first SLO is to recognize globe as a model of Earth. The second SLO is define a map and state its importance. Our today's third SLO is to identify the cardinal points on a given map and different types of north. And our last SLO is to identify directions with reference to a specific location on a map. So first of all, globe. Globe is a word that comes from a Latin word globus, which means a sphere. So globe is the position map of the earth that looks like a sphere. ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर. This is a globe. So our earth is a giant globe. We cannot see every part of our earth at the same time. So it is not possible for human beings to locate the address of every area. So क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है उसकी शक्ल जो है वो एक स्फीयर की तरह है, so that is why हम हर जगह जो है उसको नज़र नहीं आती हमें. In the same time, in order to measure or to determine locations, maps are drawn. Maps tells us where a region lies and also tell us about the directions to reach a region. So basically हमारे पास जो मैप होता है वो हमें क्लियर कट इंडिकेशंस देता है कि हमने कहाँ पहुँचना है और इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं. और मैप डिटेल से आपको हर मुल्क के बारे में बताता है, हर सिटी के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन wants to go to China from Pakistan, he will need a map to see on which side of Pakistan China lies. So the answer is very simple कि हम जब मैप खोलते हैं तो उसमें हमारे पास लोकेट हैं हर कंट्री, तो हम वहाँ से एनालाइज करते हैं कि पाकिस्तान से चाइना जो है वो किस तरफ है. सो इन ऑर्डर टू दैट डायरेक्शन अ पर्सन विल मूव टू रीच चाइना. सो इन द मॉडर्न एज, maps play a very important role. Traveling through ships and planes is directed by maps. हम समंदरी जहाज़ों के ज़रिए या हवाई जहाज़ों के ज़रिए जब मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमें मैप्स का जो है उसके किरदार की अहमियत का अंदाज़ा होता है. बिकॉज जो मैप्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है. Planes do not fly on the road, so they are not guided by any road. Similarly, ships do not sail on a road which could give them directions. So it is the maps that guide a ship or a plane to reach their destination. So जो ही हम रोड पे सफ़र करते हैं तो हमारे पास एक पूरा ट्रैक बना होता है जिसको हम रोड कहते हैं. सपोज करें ये एक गाड़ी है जो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज़ द रोड. सो इसको अपने डायरेक्शन का पता है बिकॉज जो रोड है वो इसको इंडिकेट करता है कि आपने इस तरफ मूवमेंट करनी है. लेकिन जहाज़ और बहरी जहाज़ जो होते हैं क्योंकि वो एयर में और समंदर में तैरते हैं तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक रोड नहीं होता, तो मैप के ज़रिए वो मूवमेंट करते हैं. नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. अब मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? A map has the following parts. Number 1, the title of the map. The second one is the directions. The third is scale of the map. The fourth one is longitude. The fifth one is latitude. And then key of the map and symbols. So firstly, what is the title? A map has many functions. It can be drawn for a travel purpose, or to locate boundaries of a country, or to determine climates of different regions of the world. So every map has a unique title.
जो हमें इंडिकेट करता है कि ये मैप जो है इसका पर्पस क्या है। स्पेसिफिकली आप इस मैप को गौर से देखें। दिस इज द पोर्शन ऑफ अ मैप जो मैंने यहां पर दिया है। अब टाइटल का देखें, दिस इज इट्स टाइटल, द पाकिस्तान एंड नेशनल हाईवे नेटवर्क मैप। यहां पर आपको पूरे नेटवर्क का मैप दिया गया है कि कहां से मोटरवेज पास हो रहे हैं, कहां से नेशनल हाईवेज पास हो रहे हैं, कहां से एक्सप्रेसवेज। तो चूंकि ये मैप जो है ये रोड्स का है, हाईवेज का है, सो दैट इज व्हाई द टाइटल इज नेशनल हाईवे नेटवर्क मैप। द सेकंड थिंग इज द की ऑफ द मैप, जो आपको इंडिकेट करता है कि इस मैप में क्या चीज डिपिक्ट हुई है। सो यहां पर आप देखें कि ग्रीन जो लाइन है इस मैप में वो मोटरवेज को इंडिकेट करता है। जो आपके पास डॉटेड ग्रीन लाइन है दैट इज मोटरवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। द ब्लू लाइन इंडिकेट नेशनल हाईवेज, द पर्पल लाइन इंडिकेट्स एक्सप्रेसवेज एंड द रेड लाइन इंडिकेट्स स्ट्रेटेजिक रोड्स। सो हियर इज अ क्लियर कट की ऑफ द रोड कि आप जब मैप को देंगे तो आपको अंदाजा हो कि विच वन is of what type road. Now the direction. So the most important component of a map is the directions given in it. So all the areas on a map are divided in the direction of north, south, east and west. So here this is the title of the map, this is the key of the map and this is the whole map. So these are the directions. This is a larger image of the direction. So यहाँ पर जो north है that is on the upright, ऊपर की तरफ जो आपके पास position है that is north. This is the south, this is east, this is west. So ये indicate करता है कि पाकिस्तान का जो ये मैप आपके सामने है जिसमें रोड्स जो हैं उसकी मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि कौन सा रोड कहाँ पर जाता है, इसमें ये डायरेक्शनल व्यू है। तो हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो रोड है ये स्पेसिफिक पॉइंट पे किस तरफ ओरिएंट हो रहा है। सपोज करें मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ रोड का, यहाँ पर आप देखें ये जो आपके पास हाईवे रोड है जो क्वेटा के हवाई अड्डे से मूव कर रही है, ये इस तरह जा रही है। मैं इस पर रेड मार्कर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये जो रोड है ये किस तरफ मूव कर रही है। सपोज करें मैं यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सो इसकी जो मूवमेंट है दैट इज टूवर्ड्स वर्थ, किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो स्पेसिफिकली ये जो पोर्शन है रोड का दैट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट और इसको मैं इस तरह NE से डिनोट करता हूं। सो दिस इज द डायरेक्शन दैट इज इन बिटवीन नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, क्योंकि ये रोड मूव कर रहा है। सो इसकी ओरिएंटेशन क्या है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। और अगर सपोज करें हम किसी भी चीज को लेते हैं दैट इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, तो उसको हम कहते हैं दैट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। एंड इन द सेम वे साउथ और वेस्ट के दरमियान जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। एंड बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट द डायरेक्शन दैट इज मूविंग क्या है, ये दैट इज साउथ ईस्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट के दरमियान ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड दैट इज नॉर्थ ईस्ट। सो दीज आर द डायरेक्शंस जो आपको इंडिकेट करते हैं कि मैप की पोजीशन क्या है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मैप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड और हम यहां पर इंडिकेट करेंगे कि कौन सा बरे-आज़म किस बरे-आज़म के किस डायरेक्शन में वाक़े है। दिस इज अफ्रीका। नाउ फर्स्टली डायरेक्शंस आर गिवन हियर, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। सो बेसिकली ये हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन है। नाउ एशिया जो है अफ्रीका के हम कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो किस डायरेक्शन में है, दिस इज एशिया। अफ्रीका से एशिया किस डायरेक्शन में है, दैट इज इन बिटवीन व्हाट, दिस इज फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ ड्रा करता हूं और ये आपके पास ईस्ट है तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो एशिया जो है वो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में वाक़े है।
नाउ मैं साउथ अमेरिका को लेता हूं, तो साउथ अमेरिका अफ्रीका के किस डायरेक्शन में है? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। इन द सेम वे मैं अगर अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका को कंसिडर करता हूं, तो नॉर्थ अमेरिका इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। सो इन द सेम मैनर वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच country even is in what direction with a specific country. So students, there is a homework for you from your summer pack. There is the activity number 1. You have to label the different components of a map along with cardinal points. यहाँ पर आपको blocks given हैं, इन blocks को आपने fill करना है कि ये map के कौन कौन से हिस्से हैं। The next is the activity number 2 from the summer pack. After reading the map of activity 1, answer the following questions. पिछला जो activity number 1 था उसके मैप को देखते हुए आपने इन दो सवालात का जवाब देना है। Number 1, in which direction Lahore is located with reference to Peshawar, and in which direction Karachi is located with reference to Quetta? This is very simple. जिस तरह मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स बताए, बरआज़म बताए विद रेफरेंस टू अफ्रीका, यू हैव टू एनालाइज के लाहौर पेशावर के किस डायरेक्शन में वाक़ है एंड क्वेटा जो है वो कराची के किस डायरेक्शन में है। द नेक्स्ट होमवर्क इज फ्रॉम योर बुक. यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द सर्कल. द फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन इन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वुड बी व्हाट? नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, southeast or south. The next is you have to answer the brief questions. The first one is, if the earth were flat facing the sun, would there be any nights? If yes, then why? If no, then why? You have to answer. We have discussed it in the previous chapter. The next is the comprehensive answer. You have to answer it in comprehensive manner. You have to list the number of natural phenomena we would lose if the earth were flat. अगर ज़मीन आपके पास फ्लैट होती, वो एक ग्लोब की शक्ल में ना होती, तो फिर हमारे पास कौन से नेचुरल फिनोमेनास होते जो हम नहीं फील करते और हमें नज़र ना आते। So thank you so much for the today's lecture. See you in the next lecture. Allah Hafiz.